پرستش داؤد کے خیمہ میں کیسے ہوتی تھی، اور میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ خداوند داؤد کے خیموں کو کیا کرنا جا رہا ہے، وہ بحال کرنے جا رہا ہے۔ اور اگر آپ ابھی بھی ان باتوں سے ہم ناواقف رہیں گے تو پھر کبھی بھی ہم خداوند کو خوش نہیں کر سکتے۔ آمین۔ آج جو بات کرنے جا رہا ہوں، ڈیوڈک ورشپ پیٹرن، داؤد کی پرستش کے طریقے، آپ اس کے ذریعے سے سیکھیں گے کہ داؤد کے خیمہ میں کس طور پر خدا کی پرستش ہوتی تھی اور داؤد کس طور پر پرستش کو اٹھاتا تھا۔ پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خدا کیا کرنے جا رہا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ ہاللویہ۔ 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی لوگ یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ آمین۔ میں کیا کروں گا بولیے؟ داؤد کے خیمے کو کیا کروں گا؟ کھڑا کروں گا۔ یہ خداوند کا کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے۔ اور اس بات کو جو ہے آموس نے پرانے عہد نامہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آموس کی کتاب اس کا 9واں باب۔ میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں۔ اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ آپ اندازہ کریں کہ خدا کس کو بحال کرنے جا رہا ہے، کس کو کھڑا کرنے جا رہا ہے؟ بولیے، داؤد کے خیمے کو کیا کرے گا؟ وہ کھڑا کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ داؤد کا خیمہ کیا ہے۔ میں اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو داؤد کے خیمے کی پوری تعلیم سے واقف ہونی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے داؤد کے خیمے کو کھڑا کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یروشلم کی کونسل نے کی بڑی کونسل کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو کیا کروں گا؟ کھڑا کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کس طور پر قومیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور یہ داؤد ہی کا خیمہ ہے جس میں ایسا ممکن ہے، کیونکہ جو موسیٰ نے خیمہ کھڑا کیا ہے اس میں مشکل ہے کہ کوئی یا دوسرا اس پہ انٹر ہو سکے۔ آمین۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ سیلا میں خیمہ اجتماع لگایا گیا جو خدا کا خیمہ تھا، خدا کا گھر تھا، اور اس سیلا کو خدا نے کیا کیا ہے؟ وہ رد کر دیا کہ وہ وہاں پر جو ہے مزید جو ہے میں نہیں رہوں گا۔ جب داؤد عہد کے صندوق کو اپنے شہر میں لے کر آیا تو اس نے جو ہے خداوند کے عہد کے صندوق کے لیے کیا کیا؟ جو ہے خیمہ کھڑا کیا۔ اور داؤد کے خیمہ میں کیا تھا؟ بولیے، صرف اور صرف بولیے عہد کا صندوق تھا۔ کیا تھا؟ بولیے، جبکہ جو خیمہ اجتماع میں کیا موجود تھا؟ وہ سارا ایک پورا پیٹرن تھا۔ اس میں جو ہے مکمل خیمہ تھا، جہاں پر ہوس تھا، وہاں پر جو ہے وہ پیتل کا مذبح تھا، سونے کا مذبح تھا، جیسے سونے کے چراغ دان تھے، سونے کی میز تھی، یعنی مکمل ایک طریقہ کار تھا۔ لیکن جو ہے داؤد نے کیا کیا؟ عہد کے صندوق کے لیے اپنے لیے اس کے لیے جو وہ خیمہ کھڑا کیا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے جس کے اوپر میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر خدا نے کوئی جو ہے وہ نہ ملامت کی ہے، اور نہ ہی قانون نے یا پوری جماعت نے کسی نے نہیں کہا کہ داؤد تو نے جو ہے وہ یہ خیمہ کیوں کھڑا کیا، جبکہ سیلا میں خدا کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں،
آپ اس کی تائید عموس نے کر دی اور یروشلم کی کلیسیا نے کر دی کہ خدا پھر سے داؤد کے خیمے کو کھڑا کرے گا. آمین. اور پھر اور یہ بتاتا چلا جاؤں کہ خدا موسیٰ کے خیمہ کو خیمہ اجتماع کو جو خروج کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے اور تھرو اور بیابان میں نظر آتا ہے. اور پھر جب یہ لگتے ہیں کنعان میں آ جاتے ہیں تو سیلا میں جو ہے خیمہ اجتماع لگا, وہ اس کو بحال نہیں کرتا. اور پھر جو ہے وہ ہیکل بنائی گئی سلیمان کی, اور اس کا بھی یہ جو ہے داؤد کے خیمے ہی کا ایک جو ہے وہ ایک پارٹ ہے جس کو کہہ لیجیے کہ اس کا حصہ بن گئی ہے. ادروائز خدا نے جو سلیمان کی ہیکل کا ذکر نہیں کیا ہے, بلکہ کس کا ذکر کیا ہے کہ میں داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو کیا کروں گا, بولیے, کھڑا کروں گا. آمین. لہذا جو ہے ان دنوں میں خدا کیا کر رہا ہے, داؤد کے خیمے کو کھڑا کر رہا ہے. اس کے پھٹے کو جب وہ کیا کر رہا ہے, وہ سی رہا ہے, اسے جو ہے مرمت کر رہا ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جو داؤد کا خیمہ بخشا ہے تاکہ اس میں آ کر خدا کی پرستش کر سکیں. اور داؤد کے خیمے میں زور دے رہا ہوں, میں بڑا زور دے رہا ہوں کہ داؤد کے خیمے میں صرف اور صرف کیا ہے, پرستش ہے, صرف اور صرف ستائش ہے. وہاں آپ کو ساز نظر آئیں گے, ٹھیک ہے, کیا نظر آئیں گے, ساز, اور جو ہے بجانے والے نظر آئیں گے, گانے والے نظر آئیں گے اور بجانے والے نظر آئیں گے. جب بھی آپ ورشپ کرتی ہیں آپ کا ذہن پوری طور پر جو ہے پرفیکٹ مائنڈ کے ساتھ خدا کی پرستش اس کی ستائش کریں. یہ ڈیوڈک جو ہے ورشپ پیٹرن ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ خدا کے بڑے زور اور جلال کو دیکھ سکیں گے. آمین. آپ معلوم ہیں کہ جب انوائنٹڈ اور پرفیکٹ میوزک بج رہا تھا, انوائنٹڈ اینڈ پرفیکٹ میوزک بج رہا تھا, تو جو ہے سول کو کیا ہو رہی تھی, جس کے اوپر بری روح تھی, اس سے راحت مل رہی تھی. جب آپ جو ہے پہلا سیموئیل 16واں باب اس کی 23 آیت پڑھیں, سول کو بری روح آ گئی تھی, داؤد کو بلایا گیا, اور داؤد کیا کر رہا تھا, وہ ستارے بجانے لگا, وہ انوائنٹڈ ون تھا, وہ پرفیکٹ جو ہے ساز بجانا شروع کیا, اور لہن کیا ہونا شروع ہوا, اور جو وہ ساز بجاتا رہا, جب بری روح جو ہے وہ سول سے کیا ہوتی رہی, وہ جاتی رہی. آپ میرے عزیز بھائیو جو ہے خدا کی حضوری میں انوائنٹڈ اینڈ پرفیکٹ جو وہ میوزک بجانا شروع کریں, اور جو آپ انوائنٹڈ اور جو ہے وہ پروفیٹک میوزک بجانا شروع کریں گے تو کیا ہونا شروع ہوگا, یا بری روحیں علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گی, لوگوں کو راحت ملنا شروع ہوگا. یا شور بند کیجئے اور یا پروفیٹک اور انوائنٹڈ میوزک سٹارٹ کیجئے. ہاللیلویا. ایک اور بات جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں, شاید آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن یہ اس کا جو کہ میں داؤد کے خیمے کا ذکر کر رہا ہوں, آپ ذرا تھوڑی سی آنکھیں کھول کر بیٹھیے اور آپ نے کان کھول کر بیٹھیے, کیونکہ یہ 2-3 سرکنز ایسے ہوں گے جس میں آپ کو جو ہے ٹھیک طریقے کے ساتھ جو ہے پوری سمجھ لینا پڑے گی, کیونکہ یہ معاملہ ہے پرفیکٹ معاملہ ہے, یہ جو ہے ریولیوشنری معاملہ ہے, یہ مکاشفاتی معاملہ ہے. اس لیے آپ کو بڑے چوک چبند ہو کر بیٹھنا ہوگا اور جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا. اگر ایسے ہی ہوگا تو آپ جو ہے, میں آپ کو اگلی دفعہ کہوں گا کہ اگلی دفعہ مت آئیے گا, کیونکہ ورشپ کرنا ہے, ہمیں جو ہے خدا کی ستائش کرنا ہے. داؤد کے خیمے میں ایسے تمام لوگوں کی کوئی انٹری نہیں تھی جو ہے آرام سے بیٹھ کر جو ہے بیٹھے رہتے تھے. داؤد کے خیمے میں بڑی ہلچل تھی. آمین. داؤد کے خیمے میں کیا تھی, ہلچل تھی. اس لیے اس نے اس کا جو ہے آغاز اپنے آپ سے کیا تھا. داؤد کی ورشپ, ڈیوڈک ورشپ پیٹرن کیا ہے, ڈانسنگ. آمین. کیا تھا, بولیے, ڈانسنگ. دوسرا سیموئیل 6واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا. Oh my Lord, I can't do this. میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ خدا کی حضوری میں لکھا, داؤد خداوند کے حضور, کس کے حضور میں, خداوند کے حضور. داؤد خداوند کے حضور میں, کس کے حضور, جو ہے وہ جو ہے شیطان کے حضور میں, جو ہے وہ جو ہے اپنے شادی بیاہ میں ناچ رہا تھا, وہ مینتھیو میں ناچ رہا تھا, وہ کہاں پر ناچ رہا تھا. میں جو ہے یہ چرچ کو کہوں گا
ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं इससे आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं दाऊद के खैमे का जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये राह ले रहा हूँ। माय डियर, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो है इन चीजों से बाज आइए। अगर आपका कहीं पर भी जो है ये दिल करता हो कि मैं जो है कुछ कर जाऊं, तो आप उससे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये खतरनाक है। लेकिन दाऊद क्या कर रहा है बोलिए? दाऊद खुदा के हुजूर पूरे सारे लोग से नाचने लगा और दाऊद के दाम का अफूद पहने हुए था। ठीक है, ये देखिए कि वो यहूदा के कबीले से है, लेकिन प्रीस्टहुड को वो बयान कर रहा है, कहानत जो है वो कहानत को पेश कर रहा है। उसके अंदर इतनी जरूरत क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी है जो हमें दलेरी देती है, ताकि हम जो है खुदा की हजूर में वर्शिप करें। उसने अफूद पहन करना चाहे। आमीन। वो किसके क्या पहनकर नाच रहा है? अफूद पहनकर बड़े जोर से नाच रहा था। ये हिस्ट्री के अंदर, बिब्लिकल हिस्ट्री के अंदर ये वह शख्स है जिसने ये काम किया है, और पूरी जो है बाइबल की हिस्ट्री को और सारे थियोलॉजिस्ट को जो है वो सूली पर लटका कर रखा हुआ है दाऊद ने। मैं हकीकत बताता हूँ, दाऊद ने सारे जो है थियोलॉजिस्ट को क्या किया हुआ है? सूली पर लटकाया हुआ है और उनके मुंह को बंद किया हुआ है। और जो है कभी जब भी नाच का जिक्र आएगा तो दाऊद के नाचने का लिखा है कि दाऊद खुदावंद की हुजूर पर सारे जोर से नाचने लगा और दाऊद खुदान का अफूद पहने था। ज़बूर 150 वर्स 4 ये हुक्म है। ये मैं आपको बताया है कि ये हुक्माना जो है ये दाऊद का ज़बूर है। खुदावंद की क्या करो? हमद करो। हर एक मुतरफ़्फ़स क्या करे? वो हमद करें। और ज़बूर 150 की 4 आयत में लिखा है, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। ख़ुरूज 15:20 में लिखा है, तब हारून की बहन मरियम नबिया ने तब हाथ में लिया और सब औरतें तब लिए नाचते हुए उसके पीछे गईं, पीछे चली हैं। आमीन। सुनिए गौर से सुनिए। खुदा नाच को, डांसिंग को बहाल करने का वादा करता है। आप हैरान होंगे। मैं आपको ये बाइबली बुनियादों पर बयान करना चाहता हूँ। नोहा 5:15 में लिखा है, नोहा 5:15 में लिखा है, हमारे दिलों से खुशी जाती रही, हमारा रक्स मातम से बदल गया। हमारा रक्स क्या हुआ? ये कब हुआ? जब ये उन्होंने खुद जो है साज बंद कर दिए, जब खुद खुदा की प्रस्तुति के लिए जब उन्होंने साज बजाना बंद कर दिए थे, जब गाना बंद कर दिया था, तो फिर रक्स तो मातम में बदलना था। वो ये चाहते थे कि हम दुनिया की पॉप म्यूजिक के ऊपर या ढोल ढमकों के ऊपर नाचें और कूदें और दुनिया के सामने अपने आप को नेगेट करें। और खुदा ने क्या किया? ये नोहा यिर्मयाह करता है, हमारे दिलों से खुशी जाती रही, हमारा रक्स, हमारा डांस मातम से क्या हो गया? बदल गया। लेकिन यिर्मयाह 31 जो है वो 4 और 13 आयत में लिखा है। मैं चाहता हूं कि इस आयत को पढ़ा जाए। यिर्मयाह का 31वां बाब, उसकी 4 आयत, उसकी 13वीं आयत। यिर्मयाह 31 बाब, उसकी 4 आयत। ए इस्राएल की कमारी, मैं तुझे फिर आबाद करूंगा और तू आबाद हो जाएगी। तो फिर दम उठाकर आरास्ता होगी और खुशी करने वालों के नाच में शामिल होने को निकलेगी। आमीन। 13वीं आयत, उस वक्त कमारियां और पीरों जवान खुशी से रक्स करेंगे, क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा। आमीन। ये खुदा का वादा है रक्स के लिए, डांसिंग के लिए। आमीन। इस्राएल की कवारी, मैं तुझे फिर आबाद करूंगा और तू आबाद हो जाएगी। तो फिर दफ उठाकर रास्ता होगी, वो दफ पकड़ेगी। जब उसने ऐसे किया, वो दफ पकड़कर रास्ता होगी और खुशी करने वालों के नाच में शामिल होने को क्या करेगी? वो निकलेगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, यह गौर से सुनिए। दफ पकड़ के क्या करने लगेगी? वो नाच में शामिल होगी। उस वक्त कवारियां और पीरो जवान, उसमें बूढ़े भी शामिल होंगे, उसमें जवान भी शामिल होंगे। वो खुशी से रक्स करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुशी से क्या करेंगे? वो रक्स करेंगे, क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा। हालेलुया। रक्स को खुदा यह बहाल करने जा रहा है।
Praise the Lord. रक्स को खुदा क्या करने जा रहा है? बहाल. फिर shouting and shofars. आपने शोफर्स देखे हैं, नरसिंगे देखे हैं. खुदा shouting को, खुदा क्या आवाजों को, क्या खुदा बुलंद आवाज को, खुदा नारों को और शोफर्स को क्या करेगा? वो बहाल करने जा रहा है. I praise you Lord. ये सब कुछ जो है दौड़ के खेमा के अंदर हो रहा है. शोफर्स या नरसिंगे, ट्रम्पेट्स या वो क्या थे? दौड़ के खेमे में बजते थे और जो है फिर जो है आवाजें बुलंद होती थी. Amen. दूसरा सैमुएल 15वीं आयत में लिखा है, आप जो गौर से सुनिए, जब दाऊद जो अहद के संदूक को जो है वो अपने उस खेमा में लेकर आ रहा था जो उसने बनाया था, पता है वो क्या कर रहा था? वो अहद के संदूक को लाने का कौन सी चीज जो है अहद के संदूक को लाने का सबब है? अहद के संदूक से क्या मुराद ली जाती है? The presence of God. खुदा की हजूरी और खुदा का तख्त, इससे मुराद लिया जाता है. खुदा सल्तनत करता है. खुदा सयून में क्या है? वो बुजुर्ग है. तू जो क्रूबियों में बैठता है, जलवागर हो. ये कैसे होता है? बाइबल में लिखा, दूसरा सैमुएल 6 बाब उसकी 15वीं आयत. सो दाऊद और इसराइल का सारा घराना खुदावंद की संदूक को, बोलिए क्या लिखा है आगे? बोलिए, ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए. कैसे? अहद का संदूक दाऊद के खेमे में आया है. बोलिए, ललकारते और मेरे पीछे बोले, ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए. आप ललकार कर खाइए, ये इसको ललकार, मैं बोलता हूँ ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लेकर आए. ललकारते और से और नरसिंगा फूंकते वो खुदा के अहद के संदूक को लाए हैं. आप किस को खुदा की हजूरी को खेमे के ला सकते हैं? ललकारते हुए और नरसिंगा फूंकते हुए. शोफर्स जो है आज चर्चिस के अंदर भी जो है इसका रिवाज स्टार्ट हो चुका है. नरसिंगा जो है नरसिंगे बजाने का रिवाज या कलीसिया के अंदर स्टार्ट हो चुका है. हालेलुया. आपको मालूम है ज़बूर 47 वर्स 5 में क्या लिखा है? खुदा ने बुलंद आवाज के साथ खुदावंद नरसिंगे की आवाज के साथ सऊद फरमाया. आमीन. कैसे सऊद फरमाता है? वो बुलंद आवाज के साथ. खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज के साथ जो वो सऊद फरमाया है. अजीज भाई, खुदा का संदूक, उसकी कुदरत का संदूक ललकार और नरसिंगे के साथ लाया जाता है. आमीन. हम किस जो है कहां पर जिंदगी बसर कर रहे हैं? हमें मालूम नहीं कि हम कहां पर जिंदगी बसर कर रहे हैं. हमें क्यों इसका इल्म नहीं है? हम क्यों जो है अपने घरों को जो है बंद करके बैठे हैं? हम किस शर्म और झिझक का शिकार हो चुके हैं? हमें किसने जो है मेकअप बना लिया है जो सिर्फ जो है खिड़की से झांक करती है, वो हकारत ही करती है. तो उनके नाचने और ललकारने और नरसिंगे फूंकने को जो है वो हकारत की जो है वो निगाह से देखता है. मैं इस मेकअप की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, दूर हो. मैं इस स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, चर्च से दूर हो. जो हकारत करती है, जो नाचने और गाने बजाने और ललकारने नरसिंगा फूंकने के खिलाफ खड़ी होती है, वो फांस हो जाएगी और उस जो है वो तबाह हो जाएगी. लेकिन जो गाने बजाने वालों का जो है तख्त हमेशा कायम रहेगा. हालेलुया. आपको मालूम है कि यीशु मसीह जो दुनिया का ये सारी कायनात का बादशाह है, वो कैसे आएगा? पहला तसल्ली के 4 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा. आमीन. इसलिए नरसिंगे की आवाज बुलंद होनी चाहिए. दाफ की आवाज और जो है गीत की आवाज, हमारे गलों की आवाजें ठीक होनी चाहिए. करोना यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूं कि इन गलों से दूर हो, ताकि हम बुलंद आवाज के साथ खुदा उनकी प्रस्तुति उसकी सताइश कर सके. हालेलुया. आई रिपीट यू करोना इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. लोग ठीक तो तेरी प्रस्तुति सताइश करें. I praise you Jesus Christ. और लास्ट टाइम भी मैं यह इसका जिक्र कर रहा था, यह वो दफ का जिक्र कर रहा था. हमारी जिंदगियों के अंदर दफ जो है वो आना शुरू हो हमारे. और फिर एक और भी बात बताना चाह रहा हूँ शोफर्स के हवाले से. दाने हमें यह ईमानदार है कि ईमानदार नरसिंगे की सी आवाज रखे. ये बहन कौन सी आवाज? हमारे पास बेशक नरसिंगे नहीं है. खुदा चाहे खुदा हमें नरसिंगों का जो है वो क्या करेगा, वो
इंतजाम करेगा। मैं इन सब चीज़ों को जो है किसी ना किसी तरीके से इसके चर्च के अंदर एंटर करूँगा, ताकि जो है खुदा का दाऊद का खेमा हमारे चर्च के वसीले से जो है वो खड़ा हो जाए, बहाल हो जाए। Lord, give us power. Give us power, Lord. Give us power, Lord. Give us power, Lord. Give us sources, Lord, in the name of the Lord. दाऊद तेरी विनती करता हूँ कि तो हमें ऐसे ज़राए पैदा कर दे, ताकि हम शफर्स को, हम ट्रम्पेट्स को, नरसिंगों के आवाज़ों के साथ तेरी परस्तिश और तेरी सताइश कर सके, ताकि तेरा तख्त और तेरा संदूक, तेरी कुदरत का संदूक, सारी ज़मीन के मालिक का संदूक हमारे दरमियान में राज करे। लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि हम में से जो दफ जाते हैं वो दफ को ठीक तौर पर जो है वो अपने लिए नेक्स्ट टाइम जो है ये दफ हमारे पास होंगी, जो है मैं चाहता था कि ये दफा हो लेकिन नहीं आ सकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम यह कम से कम 2-3 दफ जो है वो यहाँ पर होंगी। दफ बजाने के लिए अपने आप को पेश करें। आपको पता है कि जो है आप सब झांझों को बजाता था, जोर से बजाता था, बजाना शुरू कीजिए। आमेन। खुरीद 15-20 में लिखा मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया। आमेन। बहनें क्या करें, दफ हाथ में लें, और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। प्रेज द लॉर्ड। अब गौर से सुनिए आखिरी बातें, से 2-3 बातें हैं। दफ बड़ा जबरदस्त साज है। यशायाह 30-32 पढ़ेंगे, आप थक तो नहीं गए? नहीं थका, लेकिन ये मैटर है प्रेजेंस ऑफ गॉड का, इसलिए सब जो है वो बिल्कुल जो है फोकस कीजिए इन बातों का। 30-32 में, और इस कज़ा के लट की हर एक ज़रब जो खुदावन इस पर लगाएगा दफ और बरबत के साथ होगी, और वो उससे सख्त लड़ाई लड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्टफ ऑफ पनिशमेंट, आमीन। वो कज़ा के लठ की हर एक ज़रब, और उस कज़ा के लठ की हर एक ज़रब जो खुदावन उस पर लगाएगा कैसे होगी, किस तरह लगेगी? वो यह वो स्टफ ऑफ पनिशमेंट कैसे लगेगी? बोलिए। हर एक ज़रब, वो जो डंडा है ना, वो जो कज़ा का लठ जो है, लठ जो लगेगा ना, ठीक है, उसकी ज़रब लगेगी। वो कैसे लगेगी? तो जो खुदावन उस पर लगाएगा कैसे लगाएगा? बोलिए। दफ और बरबल के साथ होगी। जब दफ और बरबल बजेंगे तो उसी कज़ा की लठ की ज़रब जब असूर के ऊपर लगेगी, आमीन, उस दुश्मन के ऊपर लगेगी। और यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। दाऊद ने जब यह खेमा खड़ा किया, अहद का संदूक वहां पर आ गया, 7 बजने शुरू हुए, गीत गाना शुरू हुए, तो फिर क्या हुआ? इर्द की कौमें यह वो दाऊद के वो मती हो गई, और वो फतूहात हासिल करता चला गया। और चूंकि ये खेमा गिर गया, लेकिन आपसे फिर से ये बहाल होने जा रहा है। जब दफ बजेगी, और जब बरबल के साथ, दफ और बरबल के साथ खुदा ज़रब लगाएगा। आमीन। जूं दफ बजेगी, जूं जब बरबल बजेगी, क्या होगा? बोलिए। दुश्मन को सजा मिलना शुरू होगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए कहता हूं, ये हमारे रूहानी दुश्मन के खिलाफ अदालत को जारी करते हैं। आमीन। म्यूजिक जो है वो क्या करता है? ये हमारे रूहानी दुश्मन शैतान को, ये इब्लीस को, उसके बदरूहों को वो क्या करते हैं? सजा देते हैं, ये अदालत जारी करते हैं। इसलिए यह तबला बजाने वाला, और फिर जो है ऑर्गन बजाने वाला, और दफ बजाने वाला, और गाने बजाने वाला, जब आप इस तौर पर खुदा की सताइश करेंगे, और चर्च ये नहीं कि आप सिर्फ जो है तमाशाई हैं, आप इन्वॉल्व हैं। इसलिए आप खुदावंद की परस्तिश और सताइश को जो है ठीक तौर पर करना शुरू कीजिए। गीत और नगमे जो है जब उसकी हजूरी में आते हैं, बड़ी प्रिपरेशन के साथ आइए, चाहे बड़े जो है आवाजों को जो है गलों को साफ कर आइए, दफ लेकर आइए, जो है तालियों के साथ आइए, आवाजों के साथ आइए, क्योंकि हमने क्या करना है? दुश्मन को सजा देनी है, हमने खुदा की परस्तिश करनी है, और दूसरी तरफ क्या होना है? दुश्मन को सजा मिलनी है। क्या आप ये चाहते हैं कि दुश्मन को सजा मिले? आमीन। ये रूहानी जंग के लिए कारगर है। ये रूहानी जंग का जो है वो क्या है? ये एक हथियार है। जब दफ के साथ नाच होता है, जब दफ के साथ जो है प्रस्तिश होती है, तो ये जंगजू कवारी दुल्हन को पेश कर रहा होता है। ये जंगजू जो है कवारी दुल्हन को क्या कर रहा होता है? ये
पेश करना होता है कि जो इस्राएल की कवारियां जहाँ वो निकल आई हैं ताकि जो है वो दुश्मन को या वो शिकस्त दे सके, दुश्मन के ऊपर यह फतह का ऐलान कर सके। मरियम और तमाम औरतें जो है फतह का ऐलान कर रही थी। आपको जो फतह जो है कलवरी के ऊपर मिली है, आपका ऐलान कहाँ पर है? मेरी बहनों मेरे भाइयों, चर्च जो है आप किसको पे ऐलान करते हैं? दफ पकड़ कर जो है नाचते हुए, हाथों को लहलहाते हुए क्या करना शुरू करें? फतह का ऐलान कीजिए, वो हमारे करीब भी नहीं आएगा। हालेलुया। फिर बैनर्स, मैं कई ऐसी मिनिस्ट्रीज के अंदर भी देखा है कि वो बैनर्स उठाते हैं, ठीक है, लॉर्ड इज आवर बैनर, यहोवा निस्सी है, वो हमारा बैनर है। आमीन, ठीक है। जब आप जो है जब बैनर उठाते हैं झंडों के साथ, जो है झंडे उठाकर खुदा की प्रस्तुति करते हैं, ठीक है, वो कई जगहों के ऊपर जो है खुदा उनके लिए झंडे खड़े किए जाते हैं। और ज़बूर 20:5 में लिखा है, हम दिन नजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। आमीन, क्या करेंगे हम? झंडे खड़े, सलीब के झंडे, प्रेज़ द लॉर्ड, जो है खुदावंद तसलीस के झंडे, यीशु मसीह की कलवरी के झंडे जब आप जब लहराएंगे तो क्या होगा? ये फतह का ऐलान होगा। ज़बूर 96:6 में लिखा है, अज़मत और जलाल उसके हुजूर है, कुदरत और जमाल उसके मक़दस में है। हालेलुया। यशायाह 24:4-14 में लिखा है, वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे, वो गीत गाएंगे, खुदा के जलाल के सबब से समुद्र से ललकारेंगे। वो आप ललकार को, और जब ये है झंडों के साथ जब पूरी दुनिया में आवाज बुलंद होगी, चर्च पे जो है वो आवाज बुलंद होगी, तो क्या होगा? यह खुदा का जलाल उनके बजाय होगा। ये अज़मत को, खुदा की अज़मत को, डिग्निटी को, उसकी प्रस्तुति को, और उसकी सताइश को और उसकी हम्द को पेश किया जाता है। जब आप जो झंडा लेकर जब खड़े होते हैं तो फिर जब आप से लहराते हैं उस जो है राग के ऊपर, उस जो है रिदम के ऊपर जो खुदा की हुजूर में बजता है, तो इससे क्या होता है? फतह का ऐलान होता है और खुदा की अज़मत और खुदा की सताइश और खुदा की प्रस्तुति और उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि इस्राएल के सारे कबीलों के अपने अपने झंडे थे, वो जब खड़े होते थे, निकलते थे, तो अपने अपने झंडे के सजाते थे और ये खुदा की अज़मत का, खुदा के जलाल का या वो इसका जिक्र करते थे, वो नारे मारते हुए करते थे। आमीन। ये जीता जागता सबूत है कि बादशाह खुदा अज़मत वाला है। जब हम बैनर से उठाते हैं तो जीता जागता जो है वो क्या है? सबूत है कि खुदा हमारा अज़मत वाला है। गज़रुल गुज़रात 6 बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, ऐ मेरी प्यारी तू तिरसा की मानद खूबसूरत है, यरूशलेम की मानद खुश मंजर और अलमदार लश्कर की मानद मोहीब है। अलमदार लश्कर की मानद मोहीब है। इस तौर पर अपने बैनर्स खड़े करें, इस तौर पर जो है अपने झंडे खड़े करें। काश ऐसा हो जो है झंडे खड़े कर लहराते हुए खुदा की प्रस्तुति की जाए। जो है आप अपने झंडे लेकर आ सकते हैं क्रॉस के, जो है वर्शिप करने के लिए जो है झंडे जब वर्शिप करें, जब गीत गाए जाएं आप झंडे लहराएं, आप दफ बजाएं, आप गीत गाएं, आप आवाज बुलंद करें। और ये किस चीज की निशानी है कि ये हम दिखा रहे हैं दाऊद का कहना बाहर हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने सर को झुकाएं और खुदा की प्रस्तुति करें। अपने हाथों को आप रंग कर सकते हैं, सब अपने हाथों को उसकी तरफ रंग बड़ी पाकीज़गी और रास्तबाज़ी के साथ Hallelujah.
everybody, हर एक शख्स खुदा उनकी प्रस्तुति